things. Now in this session, what we're going to start with the basics. So when we say basics, so much before your your Angular layer, your HTML CSS comes, correct? So if you start with full stack development, so first layer of full stack development is Angular. Then we hit Angular means front end. First layer of full stack development is front end. So after front end, we hit API, so Express.js layer. Then after API layer, we hit the DB layer, correct? Getting my point? So जब हम front end की बात करते हैं, then in front end we have so many libraries. I have discussed about the libraries or frameworks in the last session. कि Angular होता है, Vue.js होता है, React होता है, right? jQuery is also your front end, right? PHP front end, ASP.NET front end, right? Java front end, like these. But front end में भी जब हम बोलते हैं कि we need to start front end, what is the first thing that we see in front end? Front end में सबसे पहले क्या बनाते हैं, क्या करते हैं हम front end में? What is the very first thing in front end? Sir, login page. Huh? Sir, login page, dashboard. So login page, dashboard, but login page and dashboard are functionality, are components basically. So how we create these forms? Layout, designing. Layout भी कैसे करते हैं? Design कैसे करते हैं? क्या use करते हैं layout में design में? HTML, CSS. HTML. So what we do? HTML, CSS. डिजाइन करना HTML जी करेक्ट. हम लोग उसी से स्टार्ट करते हैं पहले. ओके Yes, Okay. sir. So basic HTML. Okay, आज मैं कोई एडिटर तुम्हें नहीं बताता. I am not telling you any editor. Download this, download that. We have online editor. We can work with online editor itself. Okay. So what you do is, if you don't want to work with online editor, then you have Visual Studio Code or Sublime or Atom, right? Like these editors which you can use. But today, without downloading anything, let's start with the basic HTML on online editor. Do you know what is editor first of all? Editor क्या होता है? EDITOR editor. जिसके अंदर लाइब्रेरी होते हैं. नहीं, एडिटर क्या होता है? Sir, where we edit our codes, like we write our code, like logic codes. जहाँ पर हम अपना कोड लिखते हैं, जहाँ पर हम अपना कोड जो है, हम अपना कोड लिखते हैं, उसको बोलते हैं एडिटर. ओके, दैट इज कॉल्ड एडिटर. तो अभी मेरे पास देखो एक ऑनलाइन एडिटर है, stackblitz.com. stackblitz मैं एक बार चैट पर देता हूँ. आई होप यू गॉट इट राइट. चैट करो तो उसमें भी मिलेगा. अब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं उन्होंने कि आपको नोड में लिखना है या ग्राफक्यूएल में लिखना है या रिएक्ट में करना है या रिएक्ट टीएस में करना है, Vue.js में करना है, AngularJS में करना है, Angular में करना है. I mean, there are several technologies, front-end technologies they have given. Okay, so we are saying that we will go with our static HTML, JavaScript and CSS. तो उन्होंने क्या किया, एक प्लेन HTML पेज हमारे लिए बना दिया. ओके ओके राइट. Yes, sir. ओके. अब HTML जो है वो किससे स्टार्ट होता है? बेसिकली HTML डायरेक्टली div से स्टार्ट नहीं होता है. HTML किससे स्टार्ट होता है? Talk type. HTML टैग से स्टार्ट होता है. ओके, तो होल्ड ऑन. अगर मुझे
आई गेस मुझे एडिटर लेना ही पड़ेगा क्योंकि ऐसे तो तुम और कंफ्यूज हो जाओगे। होल्ड ऑन, बिकॉज तुम में से कुछ लोगों को HTML के बारे में पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है, बिल्कुल भी नहीं पता, राइट? देयर विल बी सम ऑफ यू हु डोंट नो अबाउट HTML, Right, एम आई sir. राइट और नॉट? Right, sir. तो एक काम करते हैं, फिर एक काम करते हैं, बिल्कुल रॉ चलते हैं। तो व्हाट यू कैन डू इज देयर इज अ एडिटर वी कॉल इट विजुअल स्टूडियो कोड। ओके, आप विजुअल स्टूडियो कोड जो है अगर ये लिखोगे गूगल पे, सो फर्स्ट लिंक यू विल फाइंड ऑफ विजुअल स्टूडियो कोड। ये एक एडिटर है, माइक्रोसॉफ्ट का एडिटर है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ओपन सोर्स। तो इसको डाउनलोड कर लो अपने ओएस के हिसाब से। इफ यू हैव मैक मशीन, मैक से डाउनलोड करो, अगर विंडोज है तो विंडोज डाउनलोड करो। डबल क्लिक, जब डाउनलोड हो जाएगा डबल क्लिक, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और वो इंस्टॉल हो जाता है। वंस इट इज इंस्टॉल्ड, वंस योर विजुअल स्टूडियो इज इंस्टॉल्ड, राइट, तो उसके बाद यू टाइप इन योर सर हेलो हेलो यस नूर, हेलो सर, ये बोल रहा है कि सबलाइम टेक्स्ट में भी कर सकते हैं ना सर कोडिंग? किसी भी एडिटर में कर सकते हैं। जी हम सर उसी में कर रहे हैं, हम उसी में करते हैं इसलिए सर बोल रहे हैं। विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो सबसे बेस्ट है इस टाइम पर। सर वो सर मेरे पास है सर, लेकिन उसमें हम नहीं कर रहे हैं, उसमें हमको समझ में नहीं आता है। सबलाइम टेक्स्ट में अच्छा लगता है इसलिए हम करते हैं, उसमें प्रोजेक्ट बनाते हैं। प्रोजेक्ट हम अच्छे बनाते काफी हम करते हैं जिसमें बेस्ट प्रोजेक्ट का आउटपुट है। ऐसे तो लोग सर वो बहुत सर हम सारे प्रोसेस में काम करते समझ रहे हैं। हैं। मैं भी तुम्हें वही समझा रहा हूँ। लोग बोलते हैं हमें जी नोटपैड जी प्लस सर, कोडिंग अच्छे से है, बट सर हम सर नोटपैड में भी किए हैं सर, सबलाइम में भी किए हैं। सर बैक में बहुत शोर आ रहा है सर। Off your mic. no, it's Noor basically. So if Noor is speaking, how can he switch off his mic? Okay. तो Noor, प्रॉब्लम ये है Okay, कि तुम्हें जिसमें मजा आता है वो पॉइंट नहीं है। एक्चुअल प्रोफेशनली किसमें काम किया जाता है वो पॉइंट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सर वही सर आपसे हम शेयर किए सर। हाँ, मैं उसी का ही तुम्हें बता रहा हूँ कि आपको लेटेस्ट और अपग्रेडेड टूल्स में ही काम करना चाहिए जिसमें आपको हर तरह से सपोर्ट मिलता है, पैकेजेस का, प्रिटीफायर का, राइट, लिंटिंग का, मिनिफिकेशन का, बंडलिंग का, इंटेलिजेंस का। सबलाइम सिर्फ एक एडिटर है, बट विजुअल स्टूडियो कोड आपका एक स्मार्ट एडिटर है। ओके, so click on Windows. I have Windows machine, so I just clicked on Windows. और तुम्हारे को यहाँ पर ये क्या ऑप्शन दिखा देगा डाउनलोड करने का, करेक्ट? तो ये exe है, एज यू ऑल नो exe है। तो हमने डबल क्लिक किया, नेक्स्ट 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 किया और ये इंस्टॉल हो जाती है। करेक्ट टीम? इज इट यस और नो? यस सर। Right, sir. Okay. So once it is installed, right? Once it is installed, you just search about Visual Studio in the system, Visual Studio Code in the system, open it. और यहाँ पर एक नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं, एक नया पेज बनाते हैं, ठीक है? तो वी से ऐड न्यू फाइल, और ये जो फाइल बनी है हमारी, इस फाइल को लेट्स सेव इट लाइक index.html. ओके, लेट्स सेव इट। और सेव भी हम एक काम करते हैं, सेव के लिए भी सी ड्राइव में मैं एक फोल्डर बनाता हूँ ट्रेनिंग करके।
अगर है तो ट्रेनिंग क्या ट्रेनिंग में यहाँ मैं ऐड करता हूँ UI बेसिक्स। UI बेसिक्स में फाइल का नाम सेव करते हैं index.html। सेव। तो ये फाइल किस नाम से सेव हुई? index.html के नाम से, राइट? इज दिस क्लियर और नॉट? इतना क्लियर हो तुम्हारे को? यस सर। हाँ, है ना? एक फाइल बनाया, फाइल का नाम रखा index.html, दैट्स इट, नथिंग एल्स हैव डन। अब देखते हैं इंडेक्स पेज स्टार्ट कैसे करते हैं, इंडेक्स फाइल लिखते कैसे हैं, आई मीन टू से HTML फाइल कैसे लिखते हैं। बेसिक क्या है HTML का? कोई भी HTML डॉक्यूमेंट होगा उसका बेसिक होगा HTML टैग। अगर उसमें HTML टैग है देन ओनली इट विल गेट रिकॉग्नाइज कि ये HTML डॉक्यूमेंट है, तभी HTML पेज जो है रन करेगा ब्राउजर पे। इट हैज टू हैव HTML टैग। तो वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी और वेरी फर्स्ट टैग ऑफ HTML पेज इज HTML टैग। HTML होता क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मतलब तुम्हारे कुछ प्री डिफाइंड टैग्स हैं, एलिमेंट्स हैं जो ब्राउजर अंडरस्टैंड करता है, राइट? देयर आर सम प्री डिफाइंड टैग्स विच एवरी ब्राउजर अंडरस्टैंड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उन टैग्स को बोलते हैं HTML टैग्स और HTML एलिमेंट्स। टीम, इज इट क्लियर और नॉट? Right, sir, clear. एवरीवन जिसको HTML नहीं भी आता उसको क्लियर हुआ कि हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड, राइट? एक्सटेंडेबल नहीं, प्री डिफाइंड कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनको ब्राउजर अंडरस्टैंड करता है, करेक्ट? तो उनको ही बोलते हैं हम HTML टैग्स और हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज टैग्स, एलिमेंट्स, टैग्स, एलिमेंट्स, व्हाटएवर यू से, इट्स सेम थिंग। तो ये एलिमेंट्स, ये टैग्स HTML के अंदर चलते हैं, HTML टैग के अंदर चलते हैं। HTML टैग पेरेंट टैग है। इसके बाद दो और टैग्स आते हैं। HTML जो टैग है, HTML एलिमेंट जो है वो दो टैग्स में डिवाइडेड है। वन, एनी गेस? हेड, नॉट हेडर, हेड, Body. एंड देन टाइटल नहीं आएगा? बॉडी एंड टाइटल आएगा। सर बॉडी फर्स्ट टाइटल। ठीक है, सर हेड एंड बॉडी में डिवाइड होता है। Ajay sir, please unmute yourself. You are muted. maybe someone has muted me. Okay, so now is it audible? Yes, sir. Now you are audible. Yes, sir. यस सर। If anything like that happens again, please let me know, Kansha or Deepa. Okay, so I repeat one more time. Your HTML document is divided into two tags basically, head and body. Head and body. और हम इसको क्या बोलते हैं? We call it DOM. ये पूरा जो है हमारा HTML पेज, इसको हम बोलते हैं DOM, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, राइट? DOM, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब हेड जो है वो किस में डिवाइडेड है? हेड में क्या क्या आता है?
व्हाट विल कम अंडर हेड? हेड में हमारा आता है टाइटल. ओके, टाइटल. टाइटल मतलब पेज नेम. फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग HTML बेसिक्स, राइट? तो ये मेरा पेज नेम हुआ, टाइटल हुआ. इसी तरह से हेड के अंदर और टैग्स भी आते हैं, जैसे मेटा टैग्स. करेक्ट, मेटा टैग्स. और क्या आता है? स्टाइल्स. स्टाइल्स मतलब अगर तुम्हें कोई स्टाइल्स देने हैं या स्टाइल शीट मेंशन करनी है. स्टाइल समझते हो? स्टाइल्स या CSS बेसिकली, जो हम Yes, बाद में देखते sir. हैं. डिजाइनिंग के लिए जो हम यूज करते हैं CSS, वो आती है स्टाइल, राइट? Yes, sir. Link. और क्या आता है हमारा? स्क्रिप्ट्स. स्क्रिप्ट्स. Link. पेशेंस, पेशेंस. स्क्रिप्ट्स. स्क्रिप्ट मतलब तुम्हारी JS फाइल, जावास्क्रिप्ट कोड. जावास्क्रिप्ट कोड. स्टाइल्स या CSS कोड्स, राइट? क्लियर है? इन सबको मैं कमेंट कर देता हूं अभी, क्योंकि अभी हमारे पास नहीं है, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ एडिंग इट. Is that much clear to all of you? ये क्लियर है? बता दीजिए टैग किस लिए यूज होता है? हाँ, मेटा टैग. मेटा टैग बेसिकली पेज के डिस्क्रिप्शन के लिए होते हैं. जैसे पेज के लिए हम, मुझे पेज का की नेम, पेज के कीवर्ड्स डालने हैं, मुझे व्यू पोर्ट मेंशन करना है, राइट? मुझे पेज का डिस्क्रिप्शन डालना है, तो उनके लिए ये मेटा टैग्स यूज होते हैं. गेटिंग पॉइंट? जैसे मुझे Language. रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन बनानी है, राइट? लैंग्वेज करेक्टर सेट देने हैं. ऐसे बहुत सारे हैं. मतलब अभी जैसे मैंने स्टार्ट किया, तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू डीप डाइव इन दैट. ओके, तो मेटा टैग्स में बेसिकली हम कस्टम चीजें डालते हैं, कस्टम. फिर हमारा आता है स्टाइल्स. आगे स्टाइल तुम सब लोगों को पता है. स्टाइल, स्टाइल, यस स्टाइल में सर. CSS डालते हैं. स्क्रिप्ट में जावास्क्रिप्ट कोड डालते हैं. देन हमारे लिंक्स होते हैं, लिंक्स, एक्सटर्नल लिंक्स, लिंक्स, राइट? तो इसमें तुम अपने आइकन लिंक करते हो, अपनी CSS लिंक करते हो, एक्सटर्नल CSS स्टाइल शीट्स, करेक्ट? कुछ भी लिंक कर सकते हो एक्सटर्नल, कुछ भी एक्सटर्नल लिंक कर सकते हो उसमें. एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट है, राइट? एक्सटर्नल CSS है, एक्सटर्नल आइकन्स हैं. ये सब तुम इसमें लिंक कर सकते हो, लिंक में पाथ दे सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल लिंक, अगर तुम्हें कोई स्टाइल शीट ऐड करनी है, तो लिंक विल से टाइप ऑफ लिंक, आई से स्टाइल शीट, कि मैं ये स्टाइल शीट लिंक कर रहा हूं. एंड देन आई कैन गिव href, राइट? कि कहां से आएगी, इसका सोर्स क्या है, href, इसका URL क्या है, कहां से मैं इस स्टाइल शीट को लोड कर रहा हूं. फॉर एग्जांपल https:// scorpius.css, something like that. Okay, तो एक लिंक है. ये लिंक, फॉर एग्जांपल दिस लिंक इज अ CSS लिंक. यहाँ पर CSS पड़ी है, स्टाइल शीट पड़ी है, तो मुझे उसको रेफर करना है, अपने पेज में लोड करवाना है, तो मैं यहाँ पर इस तरह से लिंक देके मेंशन कर सकता हूँ. तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट इज, तुम्हारे हेड टैग में क्या होता है, जो भी चीजें तुम्हें लोड करनी है पेज के लिए, जो भी टेक्निकल थिंग्स, व्हाटएवर टेक्निकल थिंग्स you wanted to load, right? You wanted to load for your page, that all will come under head tag. जैसे तुम्हें पेज का मेटा डेटा डालना है, तो तुम हेड में मेटा डेटा डिफाइन करोगे. तुम्हें पेज के लिए स्टाइल ऐड करने हैं, तो तुम स्टाइल में ऐड करोगे. पेज के लिए जावास्क्रिप्ट कोड लिखना है, तो तुम जो है जावास्क्रिप्ट में, तुम स्क्रिप्ट में ऐड करोगे. अगर तुम्हें कोई जावास्क्रिप्ट, कोई स्टाइल शीट या कोई इमेज लोड करनी है पेज के लिए, राइट, तो वो तुम लिंक में डालोगे. तो ये सब कुछ जो भी तुम्हें पेज के लिए करना है, पेज के लिए डाउनलोड करना है, राइट, या लोड करना है,
that all will go under head tag. Is this clear to all of you or no? Yes, sir. कोई issue, कोई doubt, कोई question? ओके अब बॉडी में क्या आएगा फिर? अगर हेड में ये आएगा कि हमें पेज के लिए राइट क्या क्या चीजें लोड करनी है, अगर 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 हेड में ये डिफाइन होगा तो बॉडी में क्या डिफाइन होगा? What do you say? Sir, navbar, footer. ऐसे तो बहुत सारे टैग्स हैं, बटन, इनपुट, स्ट्रॉन्ग, बी, आई, राइट? मैंने टैग्स नहीं पूछे, मैंने पूछा अगर हेड टैग में हमें पेज के लिए जो लोड करनी है डिपेंडेंसीज वो आएंगी, तो फिर बॉडी में क्या आएगा? कंटेंट आएगा सर. डायरेक्ट जो बॉडी में पेज का कंटेंट आएगा. अब वो कंटेंट कुछ भी हो सकता है, राइट? बॉडी में कंटेंट आएगा, बॉडी में एलिमेंट्स आएंगे, बॉडी में एलिमेंट्स आएंगे. गेटिंग योर पॉइंट? एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स लिमिटेड होते हैं लेकिन बहुत सारे होते हैं. लेट्स सी सम ऑफ द एलिमेंट्स. लेट्स सी सम ऑफ द एलिमेंट्स. ओके, पहले कुछ एलिमेंट्स नोट डाउन करते हैं. पहले कुछ एलिमेंट्स नोट डाउन करते हैं. ओके, फिर इनको अरेंज करेंगे. तो जैसे एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? div, राइट? स्पैन, div, पैराग्राफ. पहले कंटेनर एलिमेंट्स देखते हैं. div, पैराग्राफ, और क्या है? स्पैन, स्ट्रॉन्ग, स्मॉल, add और add one, हाइलाइटिंग के add लिए two. h1 h2 till h6. ओके, राइट? Yes, sir. ओके, देन और कौन से टैग्स होते हैं? जैसे मैं वैसे पहले कुछ डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ कि h1 h2 h3 ये एक तरह के डिस्प्ले टैग होते हैं, टाइटल टैग्स होते हैं. Hyperlink, sir. टाइटल A. टैग्स, राइट? तो तुम्हारे h1 h2 h3 h4 h5 h6 ये टाइटल टैग्स हैं, ये डिस्प्ले के लिए काम आते हैं. और कौन कौन से डिस्प्ले के काम आते हैं टाइटल टैग्स? इट इज यूज्ड to display the data. और कौन सा डिस्प्ले काम आते हैं? लेबल, राइट? लेबल, ये स्पैन, स्ट्रॉन्ग और स्मॉल ये भी डिस्प्ले के काम आते हैं. Hyperlink. जो div और p टैग होते हैं ये कंटेनर टैग होते हैं बेसिकली. कंटेनर टैग, इसमें हम कोई भी किसी भी तरह का कंट्रोल या एलिमेंट हम कंटेन करते हैं. ठीक है, इनमें एलिमेंट्स आते हैं, इसमें डिफरेंट जो है फर्दर एलिमेंट्स हम इसमें डालते हैं. फॉर एग्जांपल मुझे अगर एक पेज का डायग्राम बनाना है, एक पेज का स्ट्रक्चर बनाना है, सो आई विल बी यूजिंग अ div टैग. आई विल बी यूजिंग div टैग बिकॉज div टैग के अंदर मैं बाकी बहुत सारे दूसरे एलिमेंट्स को ऐड कर सकता हूं. करेक्ट? डोंट वरी, विल गो ओवर एवरी काइंड ऑफ टैग्स. ओके, मैं जस्ट तुम्हें एक सेग्रीगेट करके बता रहा हूं कि किस किस के कौन कौन से टैग्स किस किस लिए यूज होते हैं. सो फॉर फॉर्म्स we have form tag. Okay, for tabular format data
for grid, I should say, for grid, for making grid, we have table tag. Okay. For table. और बताओ, फॉर इनपुट डेटा इनपुट करने के लिए हम कौन सी टैग यूज करते हैं? जिसमें हम डेटा डालते हैं, मुझे डेटा डालना है, डेटा सेलेक्ट करना है, राइट? कौन कौन से टैग आएंगे? एंकर टैग टैग में डेटा डालते हो? राइट, एंकर टैग में डेटा नहीं डालते ना, तो डेटा किस में डालते हो? इनपुट, करेक्ट? इनपुट टेक्स्ट बॉक्स, जी इनपुट टेक्स्ट, चेक बॉक्स, रेडियो, राइट? करेक्ट। और किस में डेटा डालते हो? तुम्हारा टेक्स्ट एरिया, ये टैग्स जो है इनपुट डेटा के लिए होते हैं। ओके, मेरा समझे या नहीं? डिड यू गेट माय पॉइंट और नॉट? अच्छा, हम इवेंट्स के लिए Yes, कौन sir. से टैग यूज करते हैं? जैसे मुझे क्लिक करना है, सबमिट करना है, अगर मैं बोलूं कि कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन मतलब मुझे कोई एक्शन परफॉर्म करना है, उनके लिए कौन सा टैग यूज होता है? सर बटन टैग। और ए टैग, एंकर टैग। बटन टैग, एंकर टैग, इनके क्लिक पर कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म होता है। एंकर टैग पर क्लिक करते हैं तो हम दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट होते हैं, राइट? एंकर टैग हमको रीडायरेक्ट करता है, और बटन जो है वो हमारा इवेंट परफॉर्म करता है। मेरी बात समझे? तो अगर मुझे कोई एक्शन परफॉर्म करना है तो मेरे पास बटन है या मेरे पास एंकर टैग है। गेटिंग योर पॉइंट और नॉट? यस सर। टीम क्लियर है? ओके। और कौन से टैग्स हो गए हमारे पास? ओके, लिस्ट डिस्प्ले करनी है, लिस्ट टू डिस्प्ले लिस्ट। लिस्ट टेबल तो ग्रिड बनाती है, टेबल हम यूज करते हैं फॉर ग्रिड। ये लिखा है मैंने यहाँ पर, टेबल फॉर टेबल, नॉट फॉर टेबल, टेबल फॉर ग्रिड, GRID, ग्रिड, टू मेक ग्रिड। टेबल हम यूज करते हैं टू मेक ग्रिड, बट लिस्ट शो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ULLI। एग्जैक्टली, हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, UL and LI. These tags we use to print the list. UL, OL, ordered list, right? UL, OL, LI, UL, unordered list, OL, ordered list, LI stand for list item. So UL, OL, LI ये टैग जो है लिस्ट को डिस्प्ले करते हैं। जैसे मेरे पास लिस्ट है, लिस्ट ऑफ आइटम्स, तो मैं UL, LI की हेल्प से वो लिस्ट प्रिंट कर सकता हूं। ओके, मुझे किसी की गुड हैबिट शो करनी है, मुझे किसी का टाइम टेबल, नॉट टाइम टेबल, मुझे सपोज करो हॉबी शो करनी है, तो हॉबी होगी ना, हॉबी 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइक दैट। तो अगर इस तरह से लिस्ट प्रिंट करनी है तो मेरे पास ULLI है या OLLI है। बट अगर मुझे टैबुलर फॉर्मेट में ग्रिड में डेटा डिस्प्ले करना है, जैसे मुझे स्टूडेंट्स की मार्कशीट प्रिंट करनी है,
जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो वो रो एंड कॉलम की फॉर्म में डेटा होगा। तो अगर मुझे रो एंड कॉलम की फॉर्म में डेटा डिस्प्ले कराना है, देन आई वुड बी यूजिंग टेबल, बिकॉज मुझे ग्रिड प्रिंट कराना है। यहां तक क्लियर हुआ सबको? क्लियर Yes, है sir. या नहीं? Yes, sir. Okay. ठीक है, ठीक है, जस्ट मुझे 1-2 मिनट देना, जस्ट गिव मी अ ब्रेक ऑफ 2 मिनट्स, आई कम बैक एंड देन वी कंटिन्यू। तब उसका क्या करते हैं, उसके बाद इन टैग्स पे काम करते हैं। अभी ऐसे और बहुत सारे टैग्स हैं, बट अभी इतने टैग्स पे काम करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी ये टैग्स वर्क कैसे करते हैं, राइट? ये टैग्स वर्क कैसे कैसे करते हैं। ओके, अब इन सबको कमेंट कर देता हूँ एंड देन वी स्टार्ट यूजिंग देम वन बाय वन। ओके, गिव मी 2 minutes, आई एम कमिंग बैक एंड देन वी कंटिन्यू।
Hi team, I'm back. Is my voice audible? Sir, Yes. X square plus 3 Let's continue. Okay. Are we all in? Team? Is my voice audible to all of you? Yes, sir. yes, sir, audible. Okay. People are joining late or what? Hello. Okay. No problem. Let's see then. Let's continue. So let's see. There is network problem. Okay. Let's see what and all elements. I mean, whatever elements we have written over here. Let's see how we can print it. I mean, इसको use कैसे करना है? इसको print कैसे करना है? Okay. तो किसे से start करें? You tell me. Login, registration page, home page. क्या चीज बना के देखें पहले? Sir, home page. जैसे फर्स्ट नहीं होम पेज एक बार में शायद स्टार्टिंग में ज़्यादा हो जाएगा. There are a lot of people who don't have the basic HTML knowledge. No, So sir, I also don't know, sir, about much about HTML. So I thought then the home page why is you wanted to basic. start with home page directly? तो छोटे No, शुरू sir, I करते हैं thought जिससे तुम्हें आइडिया. home page. Yes, sir, मुझे लगा शायद home page is basic है. बट होम पेज बहुत बड़ा होगा. सो अगर तुम्हें नॉलेज नहीं है इसकी तो बेटर है छोटे से शुरू करते हैं. जी, right, sir, right, sir. तो let's start with a simple page, say login page. एक लॉगिन पेज बना के देखते हैं कैसे बनाएंगे. राइट. People who are absolutely new in HTML, उन लोगों के लिए, उन लोगों के पर्सपेक्टिव से मैं कह रहा हूँ कि बेस्ट इज लेट्स मेक अ शॉर्ट पेज. ओके. सो व्हाट विल बी शॉर्टर देन लॉगिन. एक लॉगिन पेज कैसे बनाएंगे. राइट. तो एज अ सेट कि सबसे पहले तो हम div, बिकॉज मुझे एक कंटेनर चाहिए, तो मैंने डिसाइड किया div इज माय कंटेनर. अब मुझे क्या बनाना है बेसिकली. मुझे लॉगिन फॉर्म बनाना है. एम आई राइट. मुझे लॉगिन फॉर्म बनाना है. तो मुझे लॉगिन फॉर्म बनाना है. तो लॉगिन फॉर्म बनाने से पहले मुझे एक हेडिंग देना है पहले कि लॉगिन फॉर्म. तो मैं हेडिंग कैसे दूंगा. मैं हेडिंग से मैं H1 टैग डालता हूँ. हाईलाइटिंग टैग बोला था ना. H1 टैग, हाईलाइटिंग टैग. तो इसे लॉगिन फॉर्म, लॉगिन फॉर्म. राइट. अभी div क्यों लिया हमने. div इज माय कंटेनर जिसमें कंटेनर विच विल कंटेन मोर देन वन एलिमेंट, दैट इज कंटेनर. तो div मेरा कंटेनर है. Then immediately after div I wanted to put a heading. Correct. I wanted to put a heading कि लॉगिन फॉर्म है. पहले एक बार इतना देखते हैं कि ये प्रिंट हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो लेट्स रन दिस पेज. लेट्स सी दिस पेज इन अवर ब्राउजर. तो मैं इस पेज को ओपन करता हूँ. और क्योंकि ये HTML पेज है, .html पेज है, इसको हम क्रोम में खोल सकते हैं, किसी ब्राउजर में खोल सकते हैं. डबल क्लिक किया ये क्रोम में खुल जाएगा. करेक्ट. तो अभी मेरे को क्या दिखा है यहाँ पर. लॉगिन फॉर्म. मैंने यही डाला है. अब आगे चलते हैं. अब लॉगिन फॉर्म के बाद, लॉगिन के बाद, sorry, heading के बाद what is the next thing that I wanted to do. I wanted to start my form. तो इसलिए मुझे क्या चाहिए. फॉर्म टैग चाहिए. राइट. फॉर्म टैग कैसे खोलो, कैसे लिखोगे इसे. एंगल ब्रैकेट स्टार्ट FORM फॉर्म और एंगल ब्रैकेट क्लोज.
तो ये जितने भी टैग्स होते हैं ये ओपन क्लोज टैग्स होते हैं, मतलब हमें ओपन करना है फिर उसे क्लोज करना है, ओपन करना है क्लोज करना है, करेक्ट। H1 स्टार्ट H1 क्लोज बाय बैकस्लैश। अब फॉर्म के अंदर सबसे पहले हमें क्या चाहिए, लॉगिन में फॉर्म के अंदर क्या होता है, लॉगिन में फॉर्म के अंदर क्या होता है, लॉगिन username, पेज, password. यूजर नेम पासवर्ड, Name पहले ID. पहले टेक्स्ट लिखा हुआ आता है, राइट, टेक्स्ट लिखा हुआ आता है, एक लेबल आता है पहले, लेबल 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 क्या बोलता है, यूजर नेम, ठीक है। और फिर क्या आता है लेबल के बाद, टेक्स्ट बॉक्स, करेक्ट। तो टेक्स्ट बॉक्स के लिए क्या बोला मैंने, टैग इनपुट टेक्स्ट, तो INUPT इनपुट, इनपुट टैग ओपन एंड इनपुट टैग क्लोज, करेक्ट। इनपुट टैग हमारा ओपन क्लोज नहीं होता है, इनपुट टैग हमारा सिंगल एलिमेंट होता है, ओके। तो इनपुट, यहाँ पर टाइप मेंशन किया कि कौन सा टाइप का इनपुट, मुझे बटन चाहिए, चेकबॉक्स चाहिए, डेट टाइम चाहिए, डेट पिकर चाहिए, ईमेल चाहिए, राइट, आई नीड इमेज, नंबर टाइप, मुझे चाहिए टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट, टेक्स्ट। तो अब अगर मैं सेव करूं, so what you will see is, मैंने सेव किया and I refresh the browser, so now you see I got one label and I got one text box, ठीक है, क्लियर है। और क्या होना चाहिए एक फॉर्म में, और क्या होता है लॉगिन फॉर्म में, यूजरनेम पासवर्ड। यूजरनेम तो हो गया, नेक्स्ट इज पासवर्ड। तो फिर से एक लेबल, स्टार्ट करते हैं और यहाँ डालते हैं पासवर्ड, ठीक है। और इसको सेव करो और चेक करो, देखो पासवर्ड सामने आ गया, पासवर्ड जो है उसके आगे आ गया। मुझे चाहिए पासवर्ड नेक्स्ट लाइन में, यस और नो, आई नीड पासवर्ड टू बी प्रिंटेड ऑन द नेक्स्ट लाइन, BR tag. ओके। सो नेक्स्ट लाइन के लिए हम क्या करेंगे, BR tag. We can apply. we'll add BR tag. BR means line break, BR tag means line break, BR, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो देखो पासवर्ड ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि BR टैग डाला है, लाइन ब्रेक, BR मीन्स नेक्स्ट लाइन, लाइन ब्रेक। एंड अगेन विल टेक वन मोर इनपुट, ठीक है। यहाँ भी इनपुट टाइप लिया टेक्स्ट, क्योंकि मुझे टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, सेव किया फाइल, रिफ्रेश किया, एक और टेक्स्ट बॉक्स आ गया, राइट, एंड पासवर्ड। ऐसे होता है पेज, यूजर नेम, एंड पासवर्ड। टीम यस और नो, पेज ऐसे होता है या नहीं, यस सर। नहीं ऐसा नहीं होता पेज, नहीं, क्या करो, क्या पासवर्ड हाइड होगा हमारा। पासवर्ड हमारा हाइड होता है। तो पासवर्ड को हाइड करने के लिए हमारा इनपुट टाइप जो है वो टेक्स्ट की जगह पर पासवर्ड होना चाहिए, राइट। इनपुट टाइप जो है वो टेक्स्ट की जगह पर पासवर्ड होना चाहिए। तो अगर पासवर्ड कर दोगे टाइप को तो ये टेक्स्ट बॉक्स ही रहेगा, लेकिन ये पासवर्ड टाइप टेक्स्ट बॉक्स है, तो ये आपका पासवर्ड को, ये आपके पासवर्ड को हाइड कर देगा, देखो, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, पासवर्ड हो गया, अब नेक्स्ट क्या, सबमिट व्हाट बटन, नेक्स्ट, सबमिट बटन, लॉगिन बटन। सबमिट। again we'll give line break, again we'll give line break, and then we add a button, so BUTTON button,
और बटन के अंदर हम लिख सकते हैं लॉगिन, सेव। ओके, ऐसे रिफ्रेश करते हैं तो ये आ गया हमारा बटन। क्लियर हुआ? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नो? Yes, sir. ठीक है, गुड। तो अब इसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई करते हैं। ब्यूटीफाई मतलब, अच्छा ये टैग क्लियर है तुम्हारे को? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? टीम, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके, Yes, sir. Clear. अब इसको ब्यूटीफाई करते हैं। तो ब्यूटीफाई के लिए हम इसमें क्या यूज करेंगे? ब्यूटीफाई के लिए हम इसमें क्या यूज करेंगे? स्टाइल। अच्छा, हम लेट्स से हम रेडी होते हैं, तो हम जब ऑफिस के लिए रेडी होते हैं तो हम उसको बोलेंगे HTML। लेकिन उसके बाद जो हम परफ्यूम लगाते हैं, मेकअप करते हैं, नहीं, वी पॉलिश अवर बूट्स, राइट, वी आयरन अवर क्लोथ्स, इसको बोलेंगे हम स्टाइल, राइट? स्टाइल बोलते हैं हम कि हम स्टाइलिंग कर रहे हैं अपने अपने आप, स्टाइल जी। मतलब ब्यूटीफाई कर रहे हैं अपने आप को। मतलब HTML के ऊपर CSS लगाएंगे तो we are saying we are beautifying our HTML. So this is raw HTML. ये बिल्कुल भी ब्यूटीफुल नहीं है, ये फंक्शनल हो सकता है बट ब्यूटीफुल नहीं है। अब इसको ब्यूटीफाई करना है, इसमें स्टाइल ऐड करना है, तो उसको बोलते हैं CSS, cascading style sheet. So let's add style basically. Let's add CSS. Let's add styles. तो जिसमें मैंने कहा यहाँ पर हेड टैग में स्टाइल ऐड करते हैं। एक स्टाइल टैग खोला और स्टाइल टैग के अंदर हम अपने स्टाइल्स ऐड करते हैं। तो मैं स्टाइल्स जो है जैसे मुझे स्टाइल देना है, फॉर एग्जांपल आई वांट टू गिव स्टाइल टू अ div, दिस div, ओके। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ div ओपन क्लोज, और मैंने इस div में ओपन क्लोज करके क्या बोला कि बैकग्राउंड मुझे इस div का पीछे का जो फॉर्म के पीछे का जो div है, फॉर्म के पीछे का जो एरिया है, उसको बैकग्राउंड, उसका बैकग्राउंड कलर मुझे चेंज करना है। तो तुमने जैसे बोला वैसी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास ऑलरेडी होगी। मैं फिर से बताता हूँ, मैं स्टाइल लिख रहा हूँ, मुझे स्टाइल किस पर चाहिए? मुझे इस div पर स्टाइल चाहिए, राइट? तो मैंने लिखा div ब्रैकेट ब्रेसेस ओपन क्लोज, और अब मैं div पर स्टाइलिंग देता हूँ, राइट? स्टाइलिंग में मुझे क्या देना है, क्या स्टाइलिंग करनी है इस div की? मैं चाहता हूँ ये पीछे जो div है, फॉर्म के पीछे जो div है, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज होता है। आई एम सेइंग बैकग्राउंड कलर टेक ग्रीन, ओके। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया। देखा तुमने या नहीं? यस और नो? Yes, sir. ओके। मुझे div की बजाय पूरी बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो मैं लिख सकता हूँ BODY बॉडी, and then instead of this green I can say light green or something. Save, refresh, तो पूरी बॉडी का ही जो कलर है वो ग्रीन हो गया, राइट? मैंने यहाँ से चेंज किया ऑरेंज, सेव, फ्रेश कर ऑरेंज, राइट? अब इसके बाद व्हाट आई वांट इज ये फॉर्म जो है ना, ये फॉर्म, करेक्ट, ये फॉर्म ये सेंटर में आ जाए, सेंटर में। डू यू एग्री और नॉट? सेंटर में आ जाए, राइट? Yes, sir. तो सेंटर में लाने के लिए इस पूरे फॉर्म को
मैं div पर स्टाइल ऐड करता हूँ। मैं div पर स्टाइल बोलता हूँ कि अगेन अगर मैं मार्जिन और पैडिंग तो मैं आज बताऊंगा, दिस इज नॉट गुड, पहले दिन में काफी हो जाएगा। सर टेक्स्ट लाइन वर्क करेगा इस पे? या मैं बॉडी में चेंज कर दूं, होल्ड ऑन। ओके, पर वो सब कुछ वो टेक्स्ट को सब कुछ वो सेंटर लाइन कर देगा। मेरी फर्स्ट डे मार्जिन एंड पैडिंग इज नॉट गुड थिंग टू स्टार्ट विद। सर div को सेंटर टैग में रख दे तो? फर्स्ट डे सेशन के लिए ये ठीक नहीं है, और इसको करना है तो हम मार्जिन ऑटो से करेंगे, इससे नहीं। ओके ओके सर। मार्जिन और पैडिंग के अलावा मैं और कैसे कर सकता हूँ, 2 मिनट को। ओके, बड़ा अच्छा आइडिया है। जैसे ये डिव है, राइट, तो मैं काम करता हूँ, मैं इस डिव को पूरा एरिया, दैट विल बी अ गुड आइडिया। मैं एक और डिव एंटर करता हूँ, ठीक है, एक और डिव एंटर करता हूँ। तो एक डिव के अंदर दूसरा डिव, और ओके, ये क्लियर हुआ? मैंने क्या किया, एक बना लिया, मैं फेसबुक जैसे लॉगिन बनाने की सोच रहा हूँ। तो एक हो गया मेन डिव दिस वन, उसके अंदर 2 डिव हो गए, एक ये। ओके, ठीक है। ओके सर। यस सर। और इस डिव के अंदर मैंने डाल दिया और दूसरे डिव में डाल दिया मेरा लॉगिन फॉर्म। अब रिफ्रेश करते हैं, ये एक के नीचे एक आ गया। व्हाट आई वाज थिंकिंग इज कि बीच में कॉलम बन जाएगा, करेक्ट। तो मुझे इसे कॉलम बनाना है, मुझे इसमें कॉलम बनाना है। तो मैं कॉलम कैसे बनाऊंगा, ऐसे अब तुम देखो, मुझे इन डिव्स पे स्टाइल भी लगाना है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर डिव लिखता हूँ, सिंपली डिव लिखता हूँ और फिर स्टाइल लगाने की कोशिश करता हूँ, तो जो मैं स्टाइल लगाऊंगा वो सारे डिव्स पे अप्लाई हो जाएगा। यस और नो, करेक्ट टीम? यस सर। तो उसके लिए आई गेस ये ज़्यादा हो जाएगा आज फर्स्ट डे के लिए ना, जिनको नहीं आइडिया, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, इतना अभी ज़रूरत नहीं है फर्स्ट डे के लिए। तो मैं वापस बैक टू नॉर्मल करता हूँ, क्योंकि मैं इसमें जाऊँगा तो मुझे फ्लोट स्टाइल सब कुछ देखना पड़ेगा, और वो फर्स्ट डे के लिए ठीक नहीं है, विल बी लाइक टू मच। तो हम लिमिटेड स्टाइलिंग करके देखते हैं। ऑब्वियसली इट विल नॉट बी दैट मच ब्यूटीफुल, बट हाँ स्टाइलिंग लिमिटेड देखते हैं कैसे होती है या कितनी हो पाती है। मैं इनफैक्ट ये बॉडी पे भी बैकग्राउंड कलर नहीं लगाता। व्हाट आई डू इज, मैं अपने डिव पर ही डिव ओपन क्लोज बैकग्राउंड कलर डिव पे लगा देता हूँ। ओके, इस डिव की हाइट और विड्थ सेट कर लेते हैं, इस डिव की हाइट और विड्थ सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस डिव की हाइट और विड्थ, तो हाइट तुम देखो छोटी लग रही है इसकी हाइट, तो हाइट करते हैं, हाइट ले लिया जैसे 500 पिक्सल। ओके, सेव 500 पिक्सल, तो हाइट बढ़ गई। अब ये पिक्सल क्या होता है, 500 पिक्सल का मतलब
पिक्सल जो है मेजरमेंट की यूनिट है, तो एक छोटा सा पिक्सल जो है ये इतना छोटा, एक पिक्सल हुआ इतना छोटा, ऐसे करके हमारा जो पेज है, पेज पूरा पेज, राइट, वो पिक्सल्स में डिवाइडेड है, वो पिक्सल में डिवाइडेड है। तो मैंने लिया 500 पिक्सल, तो 500 पिक्सल इतना हो गया। अब विड्थ भी मैं डिफाइन कर देता हूँ, मैं बोलता हूँ विड्थ भी 500 ही हो। रिफ्रेश करते हैं तो विड्थ भी हमारी 500 ही है। तो ये हमारा एक डिव का स्टाइलिंग हो गया जिसके अंदर फॉर्म है। अब मैं चाहता हूँ ये वर्टिकली सेंटर में आ जाए, ऊपर से सेंटर में आ जाए। तो देखते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट चलता है कि नहीं चलता। वर्टिकल अलाइनमेंट एंड वी से मिडल, ऐसे दिस विल वर्क ऑन सेव। ओके, आई से टेक्स्ट अलाइनमेंट, मतलब जो टेक्स्ट की अलाइनमेंट है, मैं कहता हूँ सेंटर, राइट, सेंटर। तो ये फॉर्म सेंटर में आ गई, करेक्ट। अभी इतना चला के देखते हैं, इसी पे आगे फोकस करते हैं। अब जैसे अगर तुम लॉगिन फॉर्म देखो तो ये ब्लैक कलर में अच्छा लग रहा है, मुझे इसका कलर चेंज करना है, मुझे इसका कलर वाइट करना है, वाइट। तो ये मेरा कौन सा टैग है? H1 टैग है, करेक्ट। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ H1 टैग लिखूंगा, ओपन क्लोज करूंगा, और मुझे क्या चेंज करना है? इसका कलर। व्हाट आई हैव टू चेंज टीम? कलर, करेक्ट। इसका कलर चेंज करना है, तो मैंने कहा कलर एंड देन ऐसे WHITE वाइट, सेव किया, रिफ्रेश किया, वाइट कलर हो गया। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट मेकिंग सेंस? समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ओके। Yes, sir. अब सपोज ये लेबल है, ये लेबल भी ब्लैक है, मुझे इन लेबल्स को भी वाइट करना है। तो यहाँ लेबल लिखा हुआ है, यहाँ लेबल टैग खोलो, लेबल टैग। याद रखना जो तुम टैग पे लगाओगे वो सब पे चलेगा। मतलब अगर तुमने लेबल टैग पे कोई स्टाइल किया है तो एप्लीकेशन में जितने भी लेबल टैग हैं सब पर ये स्टाइल अप्लाई होगा। So is it a good thing or bad thing? फिर से Sir, बताता हूँ, the फिर से बताता हूँ। मैंने यहाँ लिखा लेबल, अब जो मैं स्टाइल लगा रहा हूँ कलर वाइट लेबल पर, तो पूरी एप्लीकेशन में जहां भी लेबल यूज हुआ है, जहां भी, वहां हर जगह जो कलर है वो वाइट हो जाएगा। तो इज इट अ गुड थिंग और बैड थिंग? देखो मैंने लेबल पे लिखा कलर वाइट, तो कितने लेबल हैं? 2 लेबल हैं, 1 and 2, दोनों पे वाइट हो गया, दोनों का कलर वाइट हो गया। तो अगेन माय सेम क्वेश्चन, इज इट अ गुड थिंग और बैड थिंग? ये अच्छा है हमारे लिए या बुरा है? Bad things. ना, इट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन, इट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन। अगर हमें कोई ऐसी सेटिंग करनी है जो थ्रू आउट द एप्लीकेशन होनी चाहिए, अगर हमें कुछ ऐसी सेटिंग करनी है कि थ्रू आउट द एप्लीकेशन वो होनी चाहिए, देन गो बाय टैग। जैसे मैंने बॉडी टैग, जैसे मैंने लेबल टैग पे कुछ मेंशन किया, आई वांट कि पूरी एप्लीकेशन में जहां जहां भी लेबल हैं वहां वहां ये स्टाइल हो, तो मैंने लेबल टैग लगा दिया। बट अगर मुझे ऐसा नहीं करना है तो मुझे क्लास और आईडी लगाना होगा। वो मैं नेक्स्ट सेशन बताऊंगा कि क्लास और आईडी से कैसे स्टाइलिंग करते हैं। अभी हम टैग पे चल रहे हैं फिलहाल, ओके। अच्छा, दूसरी चीज देखते हैं कि जो वन सेकंड, दूसरा स्टाइलिंग करके देखते हैं बटन। जो बटन है वो बहुत ही ऑफ वाइट कलर का थका हुआ सा बटन लग रहा है, इसको ब्यूटीफाई करना है, मतलब इसमें कलरिंग करनी है। अगेन मैं बटन टैग खोलता हूँ, बटन की स्टाइलिंग, हमारे पास बटन है, लेट्स डू द स्टाइलिंग फॉर इट। तो मैं चाहता हूँ इसकी विड्थ जो है वो 60 पिक्सल हो जाए या 100 पिक्सल हो जाए। अभी देखते हैं 60 पे कितना होता है। लेट्स मेक इट 100 पिक्सल। I do the change, I refresh, yeah,
और आई वांट द विड्थ हुआ, आई वांट इसकी हाइट जो है वो करीबन 50 पिक्सल हो जाए। फ्रेश करेक्ट, बहुत ज़्यादा हो गई, 30 पिक्सल हो जाए। गुड। देन ऐसे इसका बैकग्राउंड कलर, इसका बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जांपल लाइट ब्लू हो जाए। लाइट ब्लू और डार्क ब्लू। डू यू हैव डार्क ब्लू? या वी हैव डार्क ब्लू। also good. फ्रेश देखो, अब ऑब्वियसली इस पर ब्लैक कलर ठीक नहीं लग रहा। से कलर मीन्स टेक्स्ट कलर कैन बी वाइट अगेन। फ्रेश करेक्ट। तो जो भी तुम स्टाइल दोगे, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जैसा भी तुम इसे बनाने की कोशिश करोगे, स्टाइलिंग दोगे, ये वही प्रॉपर्टीज पकड़ के तुम्हें को डिस्प्ले करेगा। टीम, डिड यू गेट माय पॉइंट और नॉट? तो अगर अब ये क्या है, ये अभी भी अच्छा नहीं लग रहा, दिस इज नॉट लुकिंग गुड, तो ये क्या सिचुएशन होगी कि यू हैव अप्लाइड द रॉन्ग स्टाइल ऑन योरसेल्फ, यू अप्लाइड द रॉन्ग मेकअप ऑन योरसेल्फ, राइट? सो इफ यू वांट टू मेक योर पेज ब्यूटीफुल, you need to apply a right makeup, you need to apply a right styles. Did you understand my point or not? Clear हुआ या नहीं? Yes, sir. ठीक है? Okay, so I guess this should be good enough for the basics. Please try the same at your end और दिखाओ मुझे कल के सेशन में या नेक्स्ट सेशन में कि तुमने क्या साइज डाला है, how you made it beautiful. Okay? Okay, sir. Today's session is already recorded. Kindly go through with it, practice at your end, and send me the screenshot in the same group. Okay? Right, team? Okay. I will upload the recording just now. I mean after the session only. Okay? Sure. Bye, team. Then see you in the next meeting. In the next meeting, we'll talk about box diagram. Box diagram मतलब कि हमारा box diagram means what is margin, what is padding, right? What is margin, what is padding, what is width, height, right? ये पूरा box diagram क्या होता है हम वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। Getting my point? Correct? And we play with more styles. So till then, kindly practice. Okay? Kindly practice the same thing what we did today. Right? Okay, And sir. send me the इतना इजाजत मुझे से कि अब लोग खबर बता रहे हैं।